بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ تہران معاہدہ کر لے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب، کہا جون میں ایران کی جوہری صلاحیت ختم کر دی، مڈ ٹرم الیکشن ہار گئے تو بہت کچھ کھو دیں گے۔ 1 سال پہلے تاریخی مہنگائی تھی، آج امریکہ سنہری دور میں داخل ہو رہا ہے۔ تیل اور ادویات کی قیمتیں کم ترین سطح پر، $18 ٹریلین کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ چین ہم سے $40 ارب کا سویابین خریدے گا، منشیات فروشوں کو بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ ہماری سرحدیں محفوظ، جرائم کی شرح میں بھی کمی آئی ہے۔ امریکی بحری بیڑے کی آمد اور اسرائیلی دھمکیاں، ایران کا آبنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان، نوٹم جاری، زمینی اور فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سعودی عرب کی یقین دہانی، ولی عہد محمد بن سلمان کا صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، ایرانی صدر نے کہا جنگ سے بچاؤ کے کسی بھی اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امریکی دھمکیوں سے خطے میں عدم استحکام کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسلامی ممالک کا اتحاد پائیدار سلامتی، استحکام اور امن کی ضمانت بن سکتا ہے۔ UN سیکرٹری جنرل کی تمام مسائل بات چیت سے حل کرنے کی اپیل۔ مائیگریشن کا وہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ مائیگریشن جو ہے یہ ایک روٹین ہے، وہاں پہ جب برف باری شروع ہوتی ہے تو وہاں سے مائیگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ TTP جو تقریباً وہاں پہ رہتے ہیں 400-500 کے قریب ان کی تعداد ہے، انہوں نے صوبائی حکومت کے ساتھ جو ہے کامیاب جو ہے نیگوشیشنز کی اور $4 ارب کا مائیگریشن کا سارا جو پیکج ہے یہ صوبائی حکومت کے آرڈرز ہیں۔ وادی تیرا میں آپریشن نہیں ہو رہا، سردی اور برف باری میں لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی معمول، نقل مکانی کو بحران بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وفاق نے خیبر پختونخوا حکومت کے الزامات مسترد کر دیے۔ خواجہ آصف کی عطاءت ارر کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا خیبر پختونخوا حکومت عوام کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہی، ناکامی کا ملبہ اداروں پر ڈالنا چاہتی ہے۔ زم اضلاع کو دوبارہ تبدیل کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ علاقے میں کل عدم TTP کے 500 کے قریب افراد موجود، PTI اور ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ گیم نہ کرے، دہشت گردی پہ سیاست نہ ہو، دہشت گردی پہ ایک موقع پہ ہو، دہشت گردی پہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت عمل درآمد ہو۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ متعلقہ فورم پہ آپ اٹھاتے بات کرتے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو جس طرح انہوں نے کہا تھا بیانیے کا جنگ بنائیں۔ پہلے دن سے ہی دہشت گردی پر موقف واضح، بلیم گیم سے گریز کیا جائے، معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کا نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ، میڈیا سے گفتگو میں PTI چیئرمین نے کہا دہشت گردی کو بیانیے کی جنگ بنانا ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں، بیانات سے گریز کیا جائے، معاملات متعلقہ فورمز پر ہی اٹھائے جائیں۔ سانحہ گل پلازہ کی عدالتی تحقیقات کے مطالبے پر سندھ اسمبلی میں ہنگامہ، حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے، علی خورشیدی کی لفظی گولہ باری، سندھ حکومت کی کسی بات پر بھروسہ نہیں، یہ لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کی تنقید، کسی کی ڈکٹیشن پر کچھ نہیں ہوگا، ضرورت پڑی تو جوڈیشل کمیشن بنائیں گے۔ MQM نے کراچی میں خون کی ہولی کھیلی، انہوں نے شہر کا جو حشر کیا وہ کسی کو نہیں بھولا۔ شرجیل میمن کا جواب، غیر مہذب رویہ رکھیں گے تو نقصان ہوگا، ضیاء الانجار کی وارننگ۔ سانحہ گل پلازہ، MQM عدالتی تحقیقات کے مطالبے پر ڈٹ گئی۔ فاروق ستار کا وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزیر اطلاعات اور میئر کراچی سے استعفے کا مطالبہ، کہا متاثرین کو انصاف دلا کر رہیں گے، پیپلز پارٹی کمیشن بنانے میں جتنی تاخیر کرے گی اتنا ہی پھنسے گی۔ سانحہ گل پلازہ، مریم نواز کی سندھ حکومت کو مدد کی پیشکش، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا متاثرین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ لاہور کی ایک عمارت میں آگ پر بروقت قابو پایا، بلڈنگز کے تحفظ کے لیے SOPs جاری کر دیے، فائر سیفٹی آلات لازمی قرار، ریسکیو 1122 کو اپ گریڈ کرنے کے لیے تمام وسائل فراہم کرنے کا عزم، ہوٹل آتش زدگی میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ امداد کا اعلان۔ IMF سے بات چیت کے لیے نئی ترجیحات طے کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم نے صنعتی شعبے کو ریلیف دینے کے لیے 2 ہفتے میں تجاویز مانگ لی، عالمی مالیاتی ادارے کو منانے کے لیے ٹھوس سفارشات فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے معاملے پر MD IMF سے بھی بات چیت کی۔ کرسٹلینا جارجیوا نے قرض پروگرام میں رہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ IMF کے جائزہ مشن کا آئندہ ماہ دورہ پاکستان متوقع۔
वज़ीर आज़म से चेयरमैन नैब की मुलाकात, इदारे की कारकर्दगी से मुतालिक सालाना रिपोर्ट पेश। शहबाज शरीफ का पेशा वराना आज़ादी और कौमी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती हिमायत का अयादा। टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करने की भी तारीफ़। दौरा लंदन के दौरान वज़ीर आज़म से AI माहिरीन की मुलाकात, मसनूई ज़हानत के अमली इस्तेमाल, डिजिटल और इक़्तिसादी तब्दीली पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने पर तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। सदर मुमलिकत का UAE का दौरा, आसिफ अली जरदारी की अमाराती सदर से मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी में नए मौक़े तलाश करने पर भी इत्तफ़ाक़। माइग्रेशन का वहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता है। माइग्रेशन जो है ये एक रूटीन है। वहाँ पे जब बर्फबारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। TTP जो तकरीबन वहाँ पे रहते हैं 400-500 के करीब उनकी तादाद है, उन्होंने सूबाई हुकूमत के साथ जो है कामयाब जो है नेगोशिएशंस की और 4 अरब रुपए का माइग्रेशन का सारा जो पैकेज है ये सूबाई हुकूमत के ऑर्डर्स हैं। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, विफाक ने KP हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सर्दी और बर्फबारी में लोगों की दीगर इलाकों में मुंतकली मामूल की बात, नकल मकानी को बहरान बनाने की कोशिश हो रही है। KP हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही, अब नाकामी का मलबा इदारों पर डालना चाहती है। ख्वाजा आसिफ की अता तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नकल मकानी करने वालों को मुआवजा भी दिया जाता है। 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मामलात KP हुकूमत और जुर्गे में तय पाए। मशरान कलअदम TTP और सूबाई हुकाम से भी मिले। जमशुदा इजला को दोबारा तब्दील करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर दिफा के इलाके में कलअदम TTP के 500 के करीब अफराद की मौजूदगी की तस्दीक, कहा PTI और उनके मुफादात जुड़े हुए हैं। सूबाई हुकूमत के सरकर्दा लोग कलअदम TTP को बाकायदा भत्ता देते हैं। गेम ना करे, दहशतगर्दी पे सियासत ना हो, दहशतगर्दी पे एक मौके पर दहशतगर्दी पे नेशनल एक्शन प्लान के तहत अमल दरामद हो। हमने पहले भी कहा कि मुतालिका फोरम पे आप उठाते बात करते, बजाय इसके कि आप उसको जिस तरह उन्होंने कहा था बयानिए का जंग बनाए। पहले दिन से ही दहशतगर्दी पर मौकिफ वाज़े, ब्लेम गेम से गुरेज किया जाए, मामले पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर का नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में PTI चेयरमैन ने कहा, दहशतगर्दी को बयानिए की जंग बनाना मुल्क और कौम के मफाद में नहीं, बयानात से गुरेज किया जाए, मामलात मुतालिका फोरम्स पर ही उठाए जाए। आप मुर्दों पे सियासत कर रहे हैं जनाब, आप मुर्दों पे सियासत कर रहे हैं। देखें, तलखी पैदा न करें। असेंबली का एक अच्छा माहौल चल रहा है, उसको कंटिन्यू करने के लिए हुकूमत को हमारी बात माननी पड़ेगी। जो आज कराची के इन मासूम लोगों के दावेदार बन रहे, इन्होंने जो कराची के साथ हशर किया हुआ किसी से भूला हुआ नहीं है, तो ये हमें डिक्टेशन ना दे। सिंध असम्बली में सानिहा गुल प्लाजा पर गर्मा गर्मी, अदालती तहकीकात के मुतालबे पर ऐवान में हंगामा, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अली खुर्शीदी की शर्जील मेमन और ज़िया लंजार से गर्मा गर्मी। सिंध हुकूमत की किसी बात पर भरोसा नहीं, ये लाशों पर सियासत कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर की लफ्जी वार, किसी की डिक्टेशन पर कुछ नहीं होगा, जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन बनाएंगे। MQM ने कराची में खून की होली खेली, उन्होंने शहर का जो हशर किया वो किसी को नहीं भूला। शर्जील मेमन का जवाब, गैर मुहज़्ज़िब रवैया रखेंगे तो फिर नुकसान होगा, ज़िया लंजार की वार्निंग। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची, ये तीनों मुस्तफ़ी हों। हम और अहलियान कराची इस मुतालबे से पीछे हटने वाले नहीं हैं कि जुडिशल कमीशन हर हाल में कायम किया जाए। सानिहा गुल प्लाजा MKM अदालती तहकीकात के मुतालबे पर डट गई। फारूक सत्तार का वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची से इस्तीफे का मुतालबा, कहा मुतासरीन को इंसाफ दिला कर रहेंगे। पीपल्स पार्टी कमीशन बनाने में जितनी ताखीर करेगी उतनी ही फंसेगी। कराची की बका और सलामती के लिए विफाक जिम्मेदारी ले। मुस्तफ़ा कमाल का भी एक बार फिर विफाक से कराची को कंट्रोल में लेने पर जोर। क्या इस्लामाबाद की पुलिस से कहा जाए कि वो हमें सिक्योरिटी दे? कोई भी MQM से सिक्योरिटी वापस नहीं दी गई।
MQM का सिंध हुकूमत पर रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने का इल्जाम। इकदाम सानिहा गुल प्लाजा और हुकूमती नाअहली सामने लाने पर उठाया गया। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी ना दी तो फिर विफाक से मांगेंगे, फारूक सत्तार का ऐलान। अमीनुल हक बोले, सूबाई हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, नाअहली अवाम के सामने लाते रहेंगे। सिंध हुकूमत ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, MQM ने सिक्योरिटी वापस लेने का शोशा छोड़ा, इल्जामात में कोई हकीकत नहीं, बयानात सिर्फ ड्रामा है। कराची में आग लगी थी गुल प्लाजा में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो भी, तो हम दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ हम खड़े हैं। कोई भी हमारी हेल्प अगर चाहिए होगी तो वो हम जरूर ऑफर करेंगे। सानिहा गुल प्लाजा, मरियम नवाज की सिंध हुकूमत को मदद की पेशकश। वजीर आला पंजाब ने कहा, मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। लाहौर की एक इमारत में आग पर बरवक्त काबू पाया। बिल्डिंग्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs जारी कर दिए। फायर सेफ्टी अलर्ट लाजमी करार। रेस्क्यू 1122 को अपग्रेड करने के लिए तमाम वसाइल फराहम करने का आज़म। होटल आतिशज़दगी में जाबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ इमदाद का ऐलान। IMF से बातचीत के लिए नई तरजीहात तय करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने सनती शोबे को रिलीफ देने के लिए 2 हफ्ते में तजावीज़ मांग ली। आलमी मालियाती इदारे को मनाने के लिए ठोस सिफारिशात फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने मामले पर MG IMF से भी बातचीत की। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। IMF के जायजा मिशन का आइंदा माह दौरा पाकिस्तान मुतवक्की। वजीर आजम से चेयरमैन नैब की मुलाकात। इदारे की कारकर्दगी से मुतालिक सालाना रिपोर्ट पेश। शहबाज शरीफ का पेशा वराना आज़ादी और कौमी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती हिमायत का अयादा। टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने की भी तारीफ। दौरा लंदन के दौरान वजीर आजम से AI माहिरीन ने मुलाकात की। मसनूई ज़हानत के अमली इस्तेमाल और डिजिटल और इक्तसादी तब्दीली पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने पर तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। CTD की बलूचिस्तान के जिला पशीन में बड़ी कार्रवाई। 10 दहशतगर्द हलाक, 10 एहलकार जख्मी। DIG CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से रॉकेट लॉन्चर, SMGs और बारूदी मवाद बरामद। बताया, हलाक होने वाले कलअदम तंजीमों से राबते में थे। कोशिश की वो सरेंडर कर दें। दहशतगर्दों को हथियार फेंक कर कौमी धारे में शामिल होने की दावत। प्लेयर्स रिटेंशन के लिए कैटेगरीज में तब्दीली। डायमंड में 11, गोल्ड में 33, सिल्वर में 16 और इमर्जिंग में 14 खिलाड़ी शामिल। हर कैटेगरी से सिर्फ एक खिलाड़ी को रिटेन करने की इजाजत होगी। नीलामी से कबल तमाम फ्रेंचाइजेज सिर्फ 4 प्लेयर को बरकरार रख सकती है। PSL 11 के लिए प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को शेड्यूल। पहले मंजूरी फिर अचानक इनकार। भारत नवाज ICC का बांग्लादेश पर एक और बार। T20 वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए बांग्लादेशी सहाफियों की एक्रेडिशन मंसूख। भारत को गैर महफूज करार देने पर दरखास्तें मुस्तरद की गई। ICC ऑफिशियल ने सच उगल दिया। एक्रेडिशन तस्दीक के बाद कैंसिल की गई। सहाफी का इंकशाफ। श्रीलंका में होने वाले मैचेस के लिए एक्रेडिशन जारी होने का इम्कान। चीन की सड़कों पर AI रोबोट्स ऑन ड्यूटी। ट्रैफिक का निजाम संभाल लिया। जगह जगह गाड़ियों की रहनुमाई। शहरियों ने इकदाम खुश आइंद करार दे दिया।